हाँ जी, I am Dr. Reena Chadda, General Manager, Indian Pollution Control Association. I have come here from Punjab office, and we are organizing here environment education program for school teachers from 60 different schools of Pathankot. And special thanks to Pratap World School and their management for all the hospitality and for coordinating and supporting this great initiative for educating our school teachers for teachers training program and further educating school children through these teachers. So again, special thanks to Punjab State Council for Science and Technology. Dr. K.S. Path is there, Joint Director, Punjab State Council, and Dr. Mandakni, who have given us funding for supporting this initiative. And today we are here to initiate actions on behalf of school teachers and school students for throughout Punjab, initiating different kind of projects on environment and solid waste and plastic waste management. So we are organizing 2 sessions and 2 workshops today. One is on creating bird nests so that students can further help in supporting and increasing the number of avian fauna in Pathankot, especially when all the teachers of Pathankot are here. And these kind of initiatives are very important considering the kind of climatic change and considering the kind of threats our biodiversity is facing these days due to global climatic change and due to increasing air pollutions and due to increasing air quality index in our area as well, as compared to if we see in Delhi, whatever air quality was in Delhi 2 years back, same air quality is now being observed in regions of Punjab. So considering these initiatives, Pratap World School has last year also organized this kind of green festival, and this year again I am here again at Pratap World School. And special thanks to Sunny Mahajan ji and Oshin ma'am for coordinating and organizing these kind of initiatives. थैंक यू सो मच। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, एयर क्वालिटी एक दिन में जैसे ख़राब नहीं हुई है, ऐसे ही एक दिन में ठीक भी नहीं हो सकती है, लेकिन हमें डेली बेसिस पे वी हैव टू टेक अप दिस मिशन टू कंट्रोल द इम्पैक्ट्स विच वी आर क्रिएटिंग ऑन एयर पॉल्यूशन। तो हमें अभी पहले हम हर एक मार्केट की विजिट के लिए हर बार गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते थे, हर फैमिली मेंबर के पास अपनी एक इंडिविजुअल गाड़ी नहीं होती थी। सो द नंबर ऑफ डेंसिटी एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. By the time any flyover gets constructed, the same number of vehicles are on road. So हमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी और एयर पोल्यूशन में भी. डे बाय डे हमारा जो कंट्रोल है एयर पोल्यूशन पर वो इसीलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि हमारी खुद की जो आदतें हैं वो हम बिल्कुल भी सुधारना नहीं चाहते. हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक आराम देखते हैं. वी टेक कंफर्ट इन गोइंग बाय आवर ओन व्हीकल रादर देन यूजिंग मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. घर अगर पेड़ लगाने की बात हो तो पेड़ लगाने के लिए हमें बोला जा रहा है, जबकि ये कॉमन सेंस है कि हमें जो दिन भर ऑक्सीजन मिलती है वो पेड़ों से ही मिल रही है और तो कोई सोर्स है नहीं हमारे पास ऑक्सीजन का. तो ये बात हमें बताई नहीं जानी चाहिए. हमें खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम चाहे अपने घरों के अंदर पेड़ लगाएं चाहे घर के बाहर पेड़ लगाएं. बट एटलीस्ट अगर हम 12,000 लीटर पर डे एयर सक कर रहे हैं तो उसको वापस करने के लिए या प्यूरीफाई करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए. बट वो हमें ख्याल नहीं आता. लेकिन हर बार जब मार्केट जाना है तो हम साइकिल या पैदल जाने की बजाय गाड़ी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और हर इंसान यही कर रहा है. इतनी बड़ी आबादी का देश है, तो जब हर इंसान की एटीट्यूड और हैबिट इसी तरह रहेगी तो चेंज लाना बहुत मुश्किल है. तो फर्स्ट हमें अपना एटीट्यूड बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. हमें कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी कि चाहे छोटा छोटा स्टेप हो बट जब हर इंसान ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनाएगा तभी कुछ चेंज आ सकता है. हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर और अपने लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं डाल सकते. ये एक इंडिविजुअल लेवल की बात है और वो इंडिविजुअल लेवल पे ही इम्प्लीमेंट होगी. पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन दे नाल अज 2 दिना सैमीनार टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप प्रताप वर्ल्ड स्कूल दे विच रखा गया. एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्टेट काउंसिल वालों प्रताप वर्ल्ड की कोलैबोरेशन दे नाल 2 दिना वर्कशॉप बहुत ही वधिया तरीके नाल ऑर्गेनाइज की गई, जिहदे विच 50 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया. साडे रिसोर्स पर्सन बहुत ही रिनाउंड रिसोर्स पर्सन सी जिन्हां ने बड़े अच्छे तरीके नाल सारे टीचर्स नूं मोटिवेट किया. एनवायरनमेंट ने अवेयरनेस नाल रिलेटेड प्रोग्राम सी.
ਸਿੰਗਲ ਵੇਸਟ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨੈਸਟ ਮੈਨ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨਾ ਚੱਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ, डायरेक्टर सनी महाजन जी, प्रिंसिपल मैम और उन्होंने पूरे टीम दे नाल एजुकेशन डिपार्टमेंट नाल मिल के इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ और बहुत ही सक्सेसफुली एक्टिविटीज ਇੱਥੇ परफॉर्म ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ परफॉर्म ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦਾ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ करना, और इस तरह दी वर्कशॉप्स जिहड़ियां वो टाइम टू टाइम होनियां चाहिदियां ताकि असीं सारे रल के अपने एनवायरनमेंट नूं बचा सकीए। ऑनरेबल डॉक्टर KS Bhatt, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंदाकिनी मैम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, कमलदीप कौर DO मैम जो आज चीफ गेस्ट थे, अमनदीप सिंह जी डिप्टी DO जो कल यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, मिस्टर संजीव जी जो EEP कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि 2 दिन का सेमिनार का वर्कशॉप फॉर मास्टर ट्रेनर्स पठानकोट के लिए 50 टीचर्स का यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया, जहाँ पे नेशनल लेवल के ट्रेनर्स, रिसोर्स पर्सन्स, मिसेस रीना चड्डा फ्रॉम इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, मिस्टर मनोज फ्रॉम इको रूट्स फाउंडेशन जो कि नेस्ट मैन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टर नीरज खत्री जी, जहाँ पे बताया जाता है कि एक नेस्ट को बनाकर आप कैसे घरों में और सोसाइटीज़ में जो हमारी बर्ड्स लुप्त हो रही हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। मिस्टर संदीप जी फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पठानकोट, सॉलिड वेस्ट को, वेट वेस्ट को, ड्राई वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे दूर रखना है और प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स को कैसे हम इको फ्रेंडली वे में जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको यूज़ करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ करें ताकि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कम कर पाएँ। जैसे कि ये जो रिसोर्स पर्सनस नेशनल लेवल से यहाँ पे आए, मुझे ज़रूर बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जो 50 टीचर्स ने यहाँ पे आज ट्रेनिंग ली है ये बहुत दूर तक ये मैसेज जाएगा और बच्चों को, सोसाइटी को, पठानकोट को हम एक और ग्रीनर और ब्यूटीफुल जिस इन्वायरमेंट की हमें सुरक्षा करनी है और संरक्षित रखना है, हम ज़रूर कामयाब होंगे। मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ और ये 2 दिन की जो वर्कशॉप बहुत सफलपूर्वक यहाँ पे आयोजित की गई उसका सभी को धन्यवाद।